Hello everyone, welcome back to e-education. In today's video, we will cover impact of government policy changes on business and industries. That government policy changes we have studied in class 11th economics, that is LPG policies, liberalization, privatization and globalization. We all know that before 1991, license Raj system was prevailing in India, and in 1991, government opted for LPG policies, which is the relaxed business operations and the removal of license Raj system in 1991. So we'll focus on the first policy, that is liberalization. Liberalization means this policy is reducing the restrictions and the control of government over the industries. This policy means that previously government was very strict. Government has to involve in each and every operation. But after 1991, government has reduced the trade restrictions by reducing the government control. That is called liberalization. Liberalization means some freedom. So it is the policy of reducing trade restriction by reducing government control. So what is the result of this policy? So decrease in tax, freedom in fixing price of the goods and services. Previously, no one was free to fix the price of goods and services without involving government. So after liberalization, a person who is running the organization can fix the price of goods and services. After that, simplification of procedure for import and export. Previously, it was very difficult to get import export license, as well as the permission, as well as the structure of import and export was very critical and difficult. But after liberalization, it was quite easy to proceed import export operations. Next is privatization. Privatization means government is selling his part to the part of public sector to the private sector. That is called disinvestment. This is the proper definition. Privatization of public sector undertaking by selling the part of equity of public sector undertaking to public. This process is known as disinvestment. Means कि government अपना part जो है वो दूसरों को दे रही है. That is called privatization. Privatization means transfer of ownership, management and the control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector. It means that government ने जो अपने controls अपने हाथ में रखे हैं public सेक्टर अंडरटेकिंग के, पीएसयू के, वो किसी और को अपना कंट्रोल, ऑनरशिप और मैनेजमेंट पावर दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. आजकल हमने बहुत बार देखा है, जैसे पहले हमारे यहाँ पर गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जीईबी चलता था, बट नाउ अब क्या हो गया, पीजीवीसीएल हो गया, यूजीवीसीएल हो गया. मींस नाउ गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे था, उसका ऑनरशिप जो है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. और प्राइवेटाइजेशन कब होता है, जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये सेक्टर में से इतना कॉस्ट, हमें रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा है जितनी हमारी कॉस्ट हो रही है. तो इस मामले में गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए सोच सकती है. तो सिंपली प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ownership, management and control of public sector to the private sector. Next is globalization. Globalization means merging our economy with the world economy. जैसे हमारी इकोनॉमी हमारे लिए, बट अब क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम पूरे ग्लोब के साथ इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं. तो हमारी इकोनॉमी किससे हम मर्ज कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी से मर्ज कर रहे हैं. दैट इज द ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग अवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, तो इंपोर्ट में लिबरलाइजेशन मिला, एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिला, और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी हट गए. पहले क्या था कि अगर आपको हांगकांग से टीवी खरीदना हो तो 10 से ज्यादा आप टीवी नहीं खरीद सकते थे. बट अब क्या सिंपल हो गया कि कितने भी क्वांटिटी में आप खरीदो उतना इनकम
ड्यूटी लगाओ, टैक्स लगाओ, आप परचेज कर सकते हो। पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन इतना नहीं था, इंपोर्ट प्रोसेस बहुत लेंदी था, बट ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा इंपोर्ट लिबरलाइजेशन इंप्रूव हुआ, एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ, एंड जो हमारे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे वो भी हट गए हैं। सो इन तीनों पॉलिसीज का बिजनेस एंड इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंक्रीजिंग द कंपटीशन due to LPG policies. Presence of multinational companies in Indian market have increased. It means that MNCs जो है इंडिया में बहुत सारी बढ़ गई हैं. It means that जितनी भी डोमेस्टिक बिजनेस लाइन है उनको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन अप रखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर इन इंडिया इट ऑब्जर्व दैट इंडियन साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड पहनते हो तो आपको अंदर से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप माइक्रोमैक्स का मोबाइल खरीदना चाहोगे तो आप नहीं खरीदोगे बिकॉज इट इज इंडियन ब्रांड, कि भाई इसकी ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी होगी। बट सेम वे आप शाओमी खरीदोगे, भले वो चाइनीज प्रोडक्ट है, बट आप क्या करोगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है ना। सो इंडियन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करना है और कंपटीशन भी करना है। सो ऑलवेज कंपटीशन लेवल अप रहेगा। पहले तो क्या था, अपनी जियोग्राफिक एरिया में आप किंग थे, बट नाउअडेज ऑल ओवर द वर्ल्ड यू हैव टू कवर, सो कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई। एग्जाम्पल देते हैं, बिफोर 1991 अगर इंडिया में आओगे तो मारुति और बजाज ये दो ऑटोमोबाइल कंपनी किंग की तरफ से काम करती थी। बट आफ्टर 1991 आज देख सकते हो कि सड़क के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट आप रन होते हुए देखते हो। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज नेसेसिटी टू चेंज। इट मीन्स दैट नाउअडेज आपका जो रीजनल बिजनेस है अब हो गया इंटरनेशनल बिजनेस। Now competition level has increased. So if you are not changing your attitude, if you are not changing your way of working, then your business will not work at all. After 1991, the pattern of market and industry is totally changed. Nowadays, every businessman or business industry is thinking how to satisfy a customer, how to give satisfaction to the demand of the customer. So it is the necessity to change. Previously जैसे आप काम करते थे वैसे अभी नहीं होगा। जैसे 1991 से पहले जो भी थी वो लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी थी कि भाई आदमियों को बुलाओ काम करवाओ। अब क्या हो गया है, अब टोटली रोबोट आ गए, बहुत सारी मशीनरी आ गई, मीन सब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गई, रुपये दो काम करवा लो, है ना। तो आपको चेंज होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अगर आप इंप्रूव नहीं होंगे, कस्टमर विल गो टू अनदर प्लेस जहां पर उसको सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट मिल पाए। थर्ड इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। आज के एनवायरमेंट के लिए देयर इज द बेस्ट कोट, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी और रिफ्यूज ग्रोथ। या तो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो या तो अपना ग्रोथ रिफ्यूज कर दो। आज आप टेक्नोलॉजी सीखोगे कल वो पुरानी हो जाएगी। इट मींस दैट जितना रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है अपने आप को, उतना ही अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको भी वो टेक्नोलॉजिकल चेंज समझना पड़ेगा। यू नीड टू स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू अडॉप्ट इट। सो जैसे अमेरिका में पहले जैसा होता था अब इंडिया में भी वैसे प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि वहां पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट आया। तो हमारे यहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट ये है कि अब वी वांट टू वर्क लाइक देम। सो rapidly changing the technological environment is also the impact of government policy changes. Next is market orientation. Previously जो बनता था वो बिकता था, बट आज के समय में क्या है, जो चाहिए वो बनता है। पहले क्या था, बल्क प्रोडक्शन होता था कि एक साथ 1000 प्रोडक्ट बना दिए जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ गई और चीप रेट में बिक गया। बट आजकल क्या हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट वो आप ही बना रहे हो। बट अगर आपके मार्केट के अंदर कोई अलग नीड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर। इट मींस दैट आज का मार्केट जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। आपके पास जो पड़ा है वो नहीं बेचना है, जो बना रहे हो वो नहीं बेचना है। जो मार्केट के अंदर एनालाइज करो कि जो मार्केट में चाहिए वो बनाओ।
produce your goods according to the market demand. That is the market orientation approach. वो भी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन से हुआ है, पहले नहीं था, क्योंकि पहले जो बनता था वही बिकता था। आज क्या हो रहा है कि कंपटीशन लेवल अप हो गया है, डिमांड अप हो गई है, अब जो मार्केट से आता है वो प्रोडक्शन में आता है। मोर डिमांडिंग कस्टमर एक्सटेंशन है इसका, कि जैसे मार्केट ओरिएंटेशन कैसे हो गया कि भाई कस्टमर आज बहुत डिमांडिंग हो गए, कि पहले क्या था कि जो होता था वो कस्टमर ले लेते थे, बट आज कस्टमर ऐसे नहीं जाएगा। आज कस्टमर को बहुत कुछ चाहिए, एक जगह पर जाके कस्टमर परचेज नहीं करेगा, चार जगह पर जाएगा, चार जगह देखेगा, कॉस्ट देखेगा, प्रोडक्ट देखेगा, क्वालिटी देखेगा, उसके बाद जो है वो परचेज करेगा, और उसमें भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करेगा। सो इट इज नाउ द चेंज ऑफ सिनेरियो एज पर द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। आज कस्टमर पहले की तरह नहीं था कि लेना हो तो लो, नहीं तो आगे जाओ, बट आज तो कस्टमर ये बोलता है कि अगर मैं मांगता हूं, देना हो तो दो, नहीं तो मैं दूसरे के पास जाता हूं। Nowadays customers are becoming more demanding due to LPG policies. Sixth one is need for developing human resources. जैसे जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आते जा रहा है, वैसे ही अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको इतना रेडी करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से ट्रेन्ड वर्कर की फोर्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं मेरी तरह आए और रख दिया। बट अगर आपके पास ऐसे भी हैं कि जो आपने रख दिया है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। Nowadays human resource development department is separately running in each and every organization to upgrade the human resources। जहां पर ह्यूमन पीछे पड़ रहे हैं कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दो, उनको मोटिवेट करो, और टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, वो चेंज के हिसाब से अपने आप को एलपीजी पॉलिसी के तहत अपने आप को क्या करो, रिफ्रेम्ड करो, restructured करो। So human resource restructuring is also the important factor of government policy changes। पहले क्या होता था, पोस्टमैन के लिए अगर पोस्ट ऑफिस आप जाते थे तो आप पोस्ट कार्ड डब्बे में इनपुट कर देते, वो हाथ से लिख के दे देता था। आजकल अगर आपने देखा हो तो पोस्ट ऑफिस में बहुत एजेड पोस्टमैन है, वो भी आज डिजिटल डिवाइस लेके आपके घर पर आता है आपकी पार्सल डिलीवरी के लिए। सो इट इज द चेंज ऑफ एलपीजी। नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है, और ह्यूमन को भी हमने क्या किया है, डेवलप किया है। सेवेंथ इज डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीएसयू। इट मींस दैट कि 1991 के बाद जैसे प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, उसकी वजह से सारे गवर्नमेंट कंट्रोल वो अपने अंदर से गवर्नमेंट छोड़ रही है। जिस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जितनी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Government keeps the control only those public sector units which were able to generate sufficient revenues to cover operating cost। जहां आप लॉस कर रहे हो, वो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने हाथ झाड़ती जा रही है, और वो गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर कन्वर्ट हो जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल जीईबी से पीजीवीसीएल हो गया है। So it was chapter number 3, business environment. Hope you have understood, and please see all the videos part 1, part 2 and part 3 of this chapter before attempting any evaluation quiz or test. Thank you. Have a blessed day ahead. Please like, share and comment. Thank you.